Hello students, today we are going to study Geography, Chapter 5, Major Domains of the Earth, Part 2, Hydrosphere. The Earth is called the blue planet or water planet because approximately 70% of total Earth's surface area is covered with water. अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ का टोटल 70% एरिया पानी से भरा है. द वाटर फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज, वाटर वेपर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. Approx 1% of fresh water is available on earth is fit for human use, and more than 97% of water is found in oceans and is too salty to use. Glaciers, rivers, oceans, lakes, underground water supplies and water vapor में जो पानी होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. अर्थ सरफेस में अप्रॉक्स 1% फ्रेश वाटर है ह्यूमन यूज़ के लिए, मगर 97% से ज़्यादा पानी ओशन में है जो कि सॉल्टी होता है, इसलिए ह्यूमन यूज़ के लिए सुटेबल नहीं है. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. Oceans. All oceans are interconnected and are the major part of the hydrosphere because more than 97% of Earth's water is found in the oceans. According to the size, there are 5 major oceans on the Earth. Number 1, the Pacific Ocean. Number 2, the Atlantic Ocean. Number 3, the Indian Ocean. Number 4, the Southern Ocean. And number 5, the Arctic Ocean. सारे ओशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये हाइड्रोस्फीयर के मेजर पार्ट्स हैं. अर्थ का 97% वाटर ओशन में पाया जाता है. 5 मेजर ओशंस के नाम यहाँ बताए गए हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग. नंबर 1, द पैसिफिक ओशन. नंबर 2, the Atlantic Ocean. Number 3, the Indian Ocean. Number 4, the Southern Ocean, or number 5, the Arctic Ocean. Now, let's study about them in details. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean is circular in shape and the largest ocean of the world. The Mariana Trench is the deepest part of the earth which lies under the Pacific Ocean. Pacific Ocean वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है और इसका शेप सर्कुलर है. अर्थ का डीपेस्ट पार्ट भी पैसिफिक ओशन में लाई करता है जिसे मरियाना ट्रेंच कहा जाता है. कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सराउंड द पैसिफिक ओशन. एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है. नंबर 2 इज द अटलांटिक ओशन. द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज एस shaped. It is surrounded by North and South America on the western side, Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular, indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Atlantic Ocean second largest ocean है वर्ल्ड का. यह एस शेप्ड का है. यह नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से वेस्टर्न साइड और
यूरोप एंड अफ्रीका से ईस्टर्न साइड में घिरा है। अटलांटिक ओशन का कोस्ट लाइन बिजनेस के लिए एक अच्छा हार्बर या पोर्ट प्रोवाइड करता है। यह एक बिजिएस्ट ओशन ट्रेड के कारण है। थर्ड ओशन इज द इंडियन ओशन। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In north, it is bounded by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. Indian Ocean ही एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम कंट्री के नाम पर है, जो कि है इंडिया। इसका शेप अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। फोर्थ इज द सदर्न ओशन। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree साउथ लैटिट्यूड। सदर्न ओशन अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरा हुआ है और ये नॉर्थवर्ड से एक्सटेंड होकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला है। फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड within the Arctic Circle and surrounds North Pole. It is connected with Pacific Ocean through Bering Strait. आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल में लाई करता है और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है बेरिंग स्ट्रेट के हेल्प से। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट? Strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and oceans. Strait पानी का नैरो पैसेज होता है जो लार्ज वाटर बॉडीज जैसे कि सीज या ओशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर, द मास ऑफ एयर और लेयर ऑफ गैसेस दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ is called the atmosphere. The atmosphere extends up to the height of 1600 km. It protects us from the harmful effects of the sun rays. The atmosphere is divided into 5 layers, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. थिन लेयर जो गैसेस का है हमारे सराउंडिंग्स में, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेयर ऑफ गैसेस जो है हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. The atmosphere is mainly composed of nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.038% together with other gases like argon, water vapor, etc. The density and the temperature of the atmosphere, that is air, is maximum at the sea level and decreases at height. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Atmosphere बना है gases से, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% और भी अदर गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे एर्गन, वाटर वेपर इत्यादि। हवा का डेंसिटी और टेम्परेचर सी लेवल के पास हाई होता है और जैसे ही हाइट बढ़ता है सी लेवल से ऊपर डेंसिटी और टेम्परेचर कम होता चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर।
The biosphere is the combination of the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere that makes life possible. The biosphere consists of biotic and abiotic components. Biotic components of biosphere are living things like animals, birds, forests, etc. Abiotic components of the biosphere are air, soil, water, sunlight. Biosphere बना हुआ है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन से, और इन सब चीज़ों के कारण लाइफ एग्जिस्टेंस इजी हो जाता है। बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं मगर नेचुरल थिंग्स होते हैं वो, जैसे एयर, सॉइल, वाटर। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ all domains are interdependent on each other. So, we must not misuse all the domains which combinedly provide us life. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere मिलकर बायोस्फीयर बनाता है और हमें लाइफ देता है। इसलिए हमें किसी भी डोमेन्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to increasing global temperature. This is termed as global warming. Global warming can be reduced by reducing pollution. कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हवा में एक्सेस हो जाए तो ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करके। इसलिए हमें चाहिए कि सारे डोमेन के बीच में नेचुरल बैलेंस बनाए रखें। किस तरीके से बनाए रखें? पॉल्यूशन को कम करके। Thank you.